फर्स्ट अटेम्प्ट तक प्रयास और लक्ष्य बैच अलग अलग चल रहे थे और उनकी जो रिस्पेक्टिव क्लासेस थी वो भी अलग अलग हो रही है। बट अब फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है, उसके बाद में सारे जो बच्चे हैं सारे सेम प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, मतलब सेम लाइन पे आ चुके हैं, सारे बच्चे एक साथ कंबाइंड हो चुके हैं। और जो आपके टीचर्स हैं वो भी बोलते हैं ना हैंड इन हैंड डाल के अब आपको रिवीजन करवाने के लिए उतर चुके हैं। तो ये जो कंबाइंड रिवीजन वाला बैच है इसका नाम है जी स्ट्राइकर बैच। ठीक है, जेई मेन सेकेंड अटेम्प्ट के लिए हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, मैं आपको प्लानिंग बता देता हूं। और कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमें जेई एडवांस के लिए फोकस करना है, हमारा स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, तो हम तो सर एडवांस के लिए अब जाना चाहते हैं। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, आपके लिए वरुण बैच जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। 17 फेब से उसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, उससे पहले एक लॉन्च होगा छोटा सा आई बिलीव, तो तब से एडवांस की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो सभी प्रकार के बच्चे जितनी भी वैरायटी एग्जिस्ट करती है, चाहे वो बोर्ड के हों, उनके लिए यूट्यूब पे 12th हैकर चल रहा है। फिर आप बोलोगे कि सर हमें हमारा जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो थोड़ा खराब हुआ, हमें प्रॉपरली जेई मेंस ओरिएंटेड रहते हुए हमें सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी करनी है, तो उसके लिए स्ट्राइकर बैच है। फिर बोले कि सर हमारा सेकंड अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत अच्छा हुआ, नाउ वी आर फोकसिंग फॉर जी एडवांस, तो उसके लिए वरुण एडवांस बैच जो है वो आने वाला है। और ये जितने भी बैचेस में यूट्यूब पे जो जितने भी बैच बताते हैं हम लोग पढ़ाते हैं वो सारे फ्री होते हैं। जो आपके इन हाउस बैचेस है, जैसे ये वाला ऐप के अंदर चलने वाला बैच है, तो ये वाला बैच जो है ऑब्वियसली जो पीडब्ल्यू के पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमेशा फ्री रहेगी हर एक चीज जो भी आपके लिए लाई गई। ठीक है, तो आप अपने आप को कैटेगराइज करें। मैं मोटा मोटा ऐसा मतलब ऐसा माना जाता है कि जिन बच्चों के 150 मार्क्स से कम आ रहे हैं, 150 से नंबर कम आ रहे हैं, वो एक बार प्लीज मेंस पे ही फोकस करके आप पढ़ाई कीजिए। जो 150 180 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं फिर वो एडवांस के लिए जा सकते हैं, बट साथ साथ में मेंस को भी आप जरूर देखें। ठीक है, Before we dive into today's topic, I want to give a shout out to our sponsor, UPass. If you're a student preparing for competitive exams like NEET or JEE, or a college student managing assignments and projects, this tool can truly be a game changer for you. With UPass, you can easily refine essays, homework, or any written content. For instance, I've used it to humanize AI-generated content, and it transformed the text into something that reads completely natural. It's a fantastic tool for writing practice, simplifying notes, or creating polished answers for mock tests. Let me show you how it works. First, I'll generate some content using ChatGPT. Let's ask it to write an article about climate change and its impacts. Here's the AI-generated content. Now, let's see how detectable this is using AI detectors. We'll start by testing it on originality. As expected, originality flags this as AI generated. Next, let's try GPT-0. Same result. It also detects this as machine written. Both detectors confirm the content isn't human-like. Now let's see how UPass can fix this. Simply search for UPass on Google, paste your content into their platform, and let it work its magic. In seconds, the text is rewritten into a natural, polished format. It's perfect for students who want to save time and focus on understanding concepts rather than struggling with wording. Here's the refined version. It looks much more natural and polished. Let's test this updated text with the same AI detectors. First, on originalities. Success. It now recognizes the text as human written. Next, on GPT-0. Again, it confirms the content as human-like. UPass did an amazing job refining the text, and there you have it. This experiment shows how tools like UPass can transform AI-generated content into something completely natural and human-readable. Whether you're a student working on essays or a professional needing polished content, UPass is the perfect solution. A big thanks to UPass for sponsoring this video and for helping students make the most of their preparation journey. Now, let's jump back into our main topic. क्योंकि आई एम डीलिंग विद ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्राउड, जिसमें हर प्रकार के बच्चे हैं। बोर्ड्स का बता दीजिए, बोर्ड्स में आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, 11वीं 12वीं वाले बच्चे भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको प्रिपरेशन आपने एवरेज लेवल तक भी नहीं की है, हो सकता है किसी ना किसी कारण वजह से सर हमारी प्रिपरेशन वैसी नहीं हुई, हम भटक गए हो या जो भी कारण हो उस पर नहीं जाते हैं। अगर आपको यह लग रहा है कि आपके बोर्ड्स में हालत खराब है, दैट मीन्स आपके एवरेज से भी कम प्रिपरेशन है जेई मेंस की, तो फिर आपको बोर्ड्स पे ध्यान देना चाहिए। सब कुछ छोड़कर पहले बोर्ड्स पक्का करो, उसमें 75% लेके आने हैं भैया, वरना अगले साल फिर ये पपूंद हमारे साथ चिपकी रहेगी, हमें फिर इंप्रूवमेंट के फॉर्म भरने पड़ेंगे। और सर ये कॉन्फिडेंस कैसे? क्योंकि बोर्ड्स एक नई चीज है, आप जब उसको देने जाओगे आपको भी डर लगेगा। हम भी कोटा में प्रिपरेशन कर रहे थे, हमारे मन में भी था अरे भाई पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं, पिछले 10 सालों के PYQ उठाए, बोर्ड्स की बात कर रहा हूं, उनके लिखने का पैटर्न देख लिया, कॉन्सेप्ट तो दिमाग में है ही, वहां पे डेरिवेशन करके दिखानी है, देख लिया उन्होंने क्या पूछा है, करके गए, आराम से आगे 83%, आराम से आगे 83%। व्हेन आई से आराम से आगे 83%, दैट मींस जो हमारी कोटा की प्रिपरेशन थी या कोचिंग वाली प्रिपरेशन थी वो मेरी ठीक ठाक थी। इस वजह से अब सिर्फ लिखना ही तो है। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी कोचिंग की प्रिपरेशन ठीक ठाक नहीं है, आप में यह कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं सवाल का जवाब देखकर यह समझ जाऊंगा कि लिखना कैसे है, तो फिर आप सारा कुछ छोड़कर पहले बोर्ड्स पे शिफ्ट हो जाओ। गेट इट वेरी स्ट्रेट, पहले वो पार्ट पक्का करो, फिर यहां से स्टार्ट करना। अपने आप को कैटेगराइज करिए प्लीज, समझे कि नहीं समझे?